Hello everyone, welcome to 41st capsule of your daily learning. Grammar and usage tip. Make him to understand that if he does not work hard, he will not be given any promotion. Now if you observe carefully, there are two parts. Make him to understand is one part, and if he does not work hard, he will not be given any promotion is second part. The second part is conditional. And this is conditional 1. Now please note, conditional 1 basically has a rule: if plus subject plus verb first form, which may have s or es depending on the case, plus subject plus will plus verb first form. Now there are some examples. If he works hard, he will be given promotion. Or the negative will be, if he does not work hard, he will not be given promotion. If he does not work hard, he will not be given any promotion. Yes, any can be added here. So second part is right. Okay, now let us come to first part. Make him to understand. Make him to understand. उसे समझाइए कि that. Now please note, make plus object plus verb first form is a complete construction. We never use make plus object plus to verb. To is not used. So this to is wrong here. Make him understand that if he does not work hard, he will not be given any promotion. उसे समझाइए कि यदि वह मेहनत नहीं करता तो उसे कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा. तो make him understand is complete in itself. Word of the day. The citizens celebrated the soldier's return to his home by adorning trees with yellow ribbons and balloons. Adorning trees with yellow ribbons and balloons. पेड़ों को सजा दिया, डेकोरेट कर दिया येलो रिबन्स और बैलून से, गुब्बारों से. उन्होंने सेलिब्रेट किया किस चीज को? सोल्जर की वापसी को, सैनिक की वापसी को. सैनिक के अपने घर वापस आने को उन्होंने सेलिब्रेट किया. अब जो सिटीजन्स, जो नागरिक ट्रीज पर येलो रिबन्स लगा रहे हैं, बैलून्स लगा रहे हैं, सोल्जर के रिटर्न सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कैसे होंगे? देखते हैं ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज सॉम्बर. सॉम्बर इज सैड, सीरियस. Now sad people do not celebrate like this. Jubilant, very very happy and excited. So this can definitely be one of the options. Pitiless, when you don't have any pity. Lacking pity, बिल्कुल दया के भाव के बिना, हृदयहीन, क्रूर. Cunning means very clever, बहुत चालाक, बहुत धूर्त. Unsullied, when you are without any harm of reputation, when there is no damage to your name. Unsullied. So best option definitely is jubilant. The jubilant citizens celebrated the soldier's return to his home by adorning trees with yellow ribbons and balloons. आइए कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द डे, ये लिया है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के ऑनलाइन एडिशन से. अम्टीन्थ का मतलब होता है when something has happened many times before. जो कई बार हो चुका हो उसे कहते हैं अम्टीन्थ. has happened many times before also. Exultant, feeling or expressing pride. When you are feeling pride and happiness, then you are exultant. Trumping, beating, defeating, किसी को गेम में हरा देना, beating. Cocking a snook. Now cocking a snook is basically making fun of somebody. When you were a child, you must have done this. When you place your thumb on your nose and keep fingers spread out, then you are making fun of somebody. किसी को चिढ़ाना. Techno-dazzled, when somebody is very much impressed or influenced by technology, then we can call such a person techno-dazzled. It has got reason. Now please understand, this it's here is it has. Now it can be it is also, it can be it has also. In this case it is it has. It has got reason. इसमें कोई तर्क है, कोई लॉजिक है. Turning its back on, it basically means जब आप किसी चीज से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं, you withdraw your support. जो आप पहले सपोर्ट कर रहे थे, अब आपने करने से मना कर दिया. You withdraw your support on its Kindle. Kindle एक ब्रांड नेम है ई रीडर का. एंड किन, रिलेटिव्स.
मतलब किंडल और उसके रिलेटिव्स, किंडल की जैसी और चीजें, एंड री एम्ब्रेसिंग, फिर से फॉलो करना, पुनः अपनाना। आइए पूरा पढ़ते हैं। फॉर द umpteenth टाइम दिस ईयर द गार्जियन हैज पब्लिश एन एक्सल्टेंट आर्टिकल ऑन हाउ बुक्स आर बैक। द गार्जियन इज नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो इसने इस साल कई बार पहले छापने के बाद एक बार और पब्लिश किया है एक बड़ा फीलिंग प्राइड आर्टिकल, जिसमें बहुत खुश हो रहा है ये कि कैसे बुक्स वापस आ गई, हाउ बुक्स आर बैक। बुक्स ने ई रीडर्स को हरा दिया है और ये एक मजाक बनाता है आर्टिकल किस पर, लेटर्स टेक्नोडिजल्स सपोर्टर्स पर। लेटर्स, अब देखिए यहां बुक्स और ई रीडर्स में कंपटीशन है, तो बुक्स के लिए बोलेंगे फार्मर्स और ई रीडर्स को बोलेंगे लेटर्स। तो ई रीडर्स के जो टेक्नोलॉजिकली इन्फ्लुएंस सपोर्टर्स थे उनका मजाक बनाते हुए आर्टिकल कह रहा है इट हैज गॉट रीजन। और इस आर्टिकल में एक रीजन भी है, मतलब यहां पर इस ऑथर ने द गार्जियन के आर्टिकल का सपोर्ट किया है। न्यू डेटा सजेस्ट दैट, जो डेटा आ रहा है वह सजेस्ट करता है दैट द रीडिंग पब्लिक इन द वेस्ट, द वेस्ट पश्चिमी देशों में जो पढ़ने वाली जनता है इज इंक्रीजिंगली टर्निंग इट्स बैक ऑन इट्स किंडल एंड किन। वो काफी बड़ी तादाद में अब अपना सपोर्ट विड्रॉ कर रही है किंडल से और दूसरे ई रीडर्स से, एंड री एम्ब्रेसिंग, और पुनः अपना रही है द ओल्ड फैशन्ड रिटर्न वर्ड, पुराने तरीके के लिखे हुए शब्द को, प्रिंटेड बुक्स को दोबारा अपना रही है। नाउ डियर फ्रेंड्स, क्लासिकल ग्रामर टेल्स यू दैट डेटा इज प्लूरल। क्लासिकल ग्रामर विल टेल यू दैट डेटम इज सिंगुलर एंड डेटा इज प्लूरल। लेकिन देखिए यहां लिख रहे हैं द डेटा सजेस्ट्स, यहां डेटा को एज अ सिंगुलर यूज किया गया है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो शब्द क्लासिकल ग्रामर में एज ए प्लूरल बताए जाते हैं उनको भी आजकल काफी अच्छे अखबार यूज करने लगे हैं ए सिंगुलर। सो दिस इज अ न्यू यूज। तो इट इज माय ऑब्जर्वेशन कि डेटा को एज ए सिंगुलर यूज करना भी अब कुछ कुछ अलाउ होने लगा है और आगे आने वाले समय में इसको आप और बड़े पैमाने पर एक्सेप्टेबल देखोगे। एज लैंग्वेज इज अ लाइव थिंग, लैंग्वेज कीप्स ऑन इवॉल्विंग विद द यूजर्स, तो डेफिनेटली डेटा को अब एज ए सिंगुलर यूज किया जाने लगा है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, गेट सक्सेस, हैव अ नाइस टाइम।